Hello everyone. We were doing chapter number 6 and we have discussed various type of causes of the revolt, and one of the causes immediate causes. In 1856 the British government introduced a new rifle called Enfield rifle for the army. The Enfield had greased paper attached round the cartridge. In order to load the rifle, the sepoy had to bite off the paper with his mouth. In 1857, a rumor spread that he greased cartridge was made up of fat of pigs and cow. This deeply hurt the religious sentiment of both Hindus and Muslims. The sepoy refused to use the new rifle and decided to revolt. This incident gave the necessary spark to the fire of anger and discontent burning in the heart of Indians. तो इमीडिएट कॉज क्या था कि एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1856 में उन्होंने एक राइफल बनाई, कह सकते हैं गन, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और उसके ऊपर एक पेपर था, कार्टेज के ऊपर एक पेपर था जिसको चलाने से पहले वो उसको अपने माउथ से ओपन करना पड़ता था। तो एक 1857 में एक र्यूमर मतलब अफवाह आई कि वो जो कार्टेज के ऊपर जो पेपर है वो किसका बना हुआ है, फैट ऑफ पिग्स एंड काउ। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे तो उनके सेंटिमेंट को ये काफ़ी हर्ट करता, क्योंकि उसमें हिंदूज भी थे मुस्लिम्स भी थे। तो उन्होंने उस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया और इसके अगेंस्ट अपना विद्रोह दिखाया रिवॉल्ट करके। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण रहा है रिवॉल्ट का, 1857 रिवॉल्ट का। Our next topic is revolt at Delhi and end of the Mughal Empire. On 10th May 1857, the sepoys at Meerut marched to jail, freed their colleague and massacred the British officer. The next morning they reached Delhi, where the local sepoy joined them. They overpowered the small British garrison, killed the European officer and proclaimed Mughal Emperor Bahadur Shah II as the Emperor of Hindustan. This news spread quickly to the neighboring region and the people rose spontaneously in rebellious against the British. All rebellion sepoys and the Indian chief who rebelled proclaimed their locality at Bahadur Shah. Delhi thus became the center of the revolt and the Bahadur Shah its symbol. Bhagat Khan of Bareilly, who had served in the British army, led a band of rebels to Delhi. His able military leadership helped the rebels keep the British out of Delhi for several weeks. To suppress the revolt, the British brought in forces from various regions of India, including a large number of newly recruited Sikh sepoys from Punjab. In September 1857, the British reoccupied Delhi. A terrible massacre followed. The Mughal Empire came to an end. Bahadur Shah was captured, tried, fought guilty, and deported to Yangon, where he died in 1862. His two sons were shot dead. अब इस पैराग्राफ में क्या है कि दिल्ली जो है वो रिवॉल्ट का सेंटर क्यों बना, वो इसलिए बना कि 1857 में 10 मई को जो सिपॉयज थे, जो सिपाही थे, वो सारे के सारे जेल में चले जाते हैं और वहाँ से लोगों को निकाल देते हैं और इकट्ठे जितने भी ऑफिसर्स थे उन पे वार करते हैं और सबको मार देते हैं। और अगले ही दिन वो कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली, और दिल्ली में जाके जो दूसरे लोकल सिपॉयज होते हैं वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और जो छोटे छोटे ब्रिटिश के जो कह सकते हैं ऑफिसेज होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ब्रिटिश जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं उनको भी मार देते हैं। और उन्होंने वहाँ जाके जो बहादुर शाह सेकंड थे उन्हें इस हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया। और ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से सारे इंडिया में फैल गई और उसके बाद जो सारा इंडिया जो है इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने लग गया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि जो इंडिया पे राज है वो बहादुर शाह का है, ना कि ब्रिटिशर्स का। तो सारे बहादुर शाह पर काफ़ी ट्रस्ट जताने लगे। तो इसकी वजह से जो है दिल्ली जो है वो सेंटर बन गया रिवॉल्ट का और बहादुर शाह जो मेन इनके लीडर कह सकते हैं, मेन सिंबल थे इस रिवॉल्ट के। उसके बाद भगत खान थे जो बरेली के थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी कि वो ब्रिटिश को जो है वो दिल्ली से बाहर रखें। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और ऐसा हुआ भी। ब्रिटिशर्स को उन्होंने दिल्ली से काफ़ी वीक के लिए बाहर रखा। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी कोशिश करी ताकि ये रिवॉल्ट जो है सप्रेस हो सके, ताकि लोग जो हैं ये रिवॉल्ट ना करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें करी, जैसे कि काफ़ी सारे उन्होंने जो नए रिक्रूट करे थे, आर्मी में मेंबर्स रिक्रूट किए थे, जैसे कि सिख सिपॉयज थे पंजाब से, उनके हेल्प से उन्होंने सारा जो दिल्ली है वो दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लिया। और मसैकर, जैसे जलियांवाला बाग मसैकर था, एक घुस के वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया। तो इसी तरह से उन्होंने मसैकर फॉलो किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया और जो मुग़ल एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। और बहादुर शाह को भी उन्होंने ट्रायल पे ले आए
और उन्हें रंगून भेज दिया और वहाँ वो उनकी डेथ हो गई 1862 में। और जो उनके आगे 2 बेटे थे उनको भी मार दिया। तो इस तरह मुगल एम्पायर का एंड हो गया, बिल्कुल मुगल एम्पायर खत्म हो गया। Next topic is nature of the revolt. The revolt of 1857 was called the Sepoy Mutiny by the British authorities, while Indian historians call it the First War of Independence. The revolt began with the mutiny of the Sepoy, but was soon transferred in the popular revolt when people from different sections of the society spontaneously joined in. This is evident from the fact that out of the estimated 150,000 people killed in the revolt, 1 lakh were civilians. Although the concept of rivalry towards the country had not yet developed in India, the Indian did unite under Bahadur Shah II for a short while to win freedom from foreign rule. This supports the argument that the revolt was indeed a war of independence. अब ये जो रिवॉल्ट था इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा सिपोई म्यूटिनी भी कहा गया था, लेकिन कुछ इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इन्हें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहली लड़ाई थी आज़ादी के लिए। और जो रिवॉल्ट था ये सिपोई म्यूटिनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ था, एज ए म्यूटिनी शुरू हुआ था। जो सिपोयस थे उन्होंने इनके सारे जो पॉलिसीज थे उन्हें मानने को इनकार कर दिया था। फिर धीरे धीरे लोग भी इसमें शामिल होते गए और इसने रिवॉल्ट का रूप ले लिया। और जितने लोग इसमें मारे गए, नियर अबाउट 1.5 लाख लोग की हत्या हुई, जिसमें से 1 लाख लोग जो हैं वो सिविलियंस थे। इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए बोला गया क्योंकि लोगों ने बहादुर शाह सेकंड को बहुत सपोर्ट किया और उन्हें लगा कि अगर ये हमारे हिंदुस्तान के नए एम्परर बनते हैं, राजा बनते हैं, तो जो फॉरेन रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसे एक तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। Next topic is other center of the revolt. The revolt spread to various regions. It won the support of the dispossessed nobles and landlords and the artisan and the peasants. However, it was not all India in character. Punjab, Rajasthan, Bengal and the Deccan remain almost unaffected. अब ये जो रिवॉल्ट है ये सारे रीजन में फैल चुका था और इसको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन कुछ इंडिया के स्टेट्स अभी भी ऐसे थे जहाँ पे इसका कोई भी अफेक्ट नहीं था। वो स्टेट्स अनइफेक्टेड थी, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, बंगाल, ये सब अनअफेक्टेड स्टेजेस थी। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट. The Indian military technique were outdated. The rebels' leader lacked experience and coordination, and they failed to consolidate their gains. Moreover, the rebels got almost no support from the British strongholds of Bengal, Bombay, and Madras, where the British took all the possible precaution to keep rebellious people in check. In Calcutta, for example, a regiment of armed guards were formed and given full authority to open fire on people even suspected of rebellious activity. And in Madras, people suspected of spreading the message of rebellion were arrested and deported to the Andaman Islands. The ruler of many Indian princely states remained aloof, and some rulers like Sindhia of Gwalior, the Nizam of Hyderabad, and the ruler of Nepal, some Rajput princes, the ruler of Patiala, Nabha, and Kashmir, and some chieftains of Punjab even helped the British in suppressing the revolt. Another weakness of the revolt was the aloofness of the Western educated Indians, who probably regarded British rule as a necessary for India's modernization. अब फेलियर के काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि उनकी जो टेक्निक्स थी वो काफ़ी आउटडेटेड थी। जो इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स थी वो काफ़ी आउटडेटेड थी और ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी अपडेटेड टेक्निक्स थी, और जो उनके लीडर्स थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनमें कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन इंडियन लीडर्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई किसी को मैसेज नहीं देता था कोई स्टेप उठाने से पहले, तो इसकी वजह से काफ़ी मिसमैच हो रहा था आपस में उनका खुद का ही, इसलिए ये फेल हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए थे, जैसे कि उनके पास अगर उन्हें ऑर्डर दे रखा था आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को, कि अगर कोई भी आपको सस्पेक्ट दिखता है तो उसे वहीं पे गोली मार दो या फिर उसे अरेस्ट कर लो। और जो लोग ये फालतू के अफवाहें फैला रहे थे रिवॉल्ट की, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद काफ़ी रूलर्स थे, जैसे कि सिंधिया ग्वालियर के रूलर, हैदराबाद के, नेपाल के, पटियाला के, इन सब ने क्या करा था, इनकी हेल्प करी थी इस रिवॉल्ट को रोकने में। तो इसलिए ये भी वीकनेस थी कि आपस में जो लूप होल से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया और इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया और रिवॉल्ट फेल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट. The revolt marked the end of the East India Company's rule in India, and the British Crown took over the administration of British Indian Territory in 1858. A cabinet rank minister called the Secretary of the State of India was put in charge for British political affairs in India. He was responsible to the Parliament. The Governor General under the company became known as the Viceroy. The Viceroy was answerable to the Crown through the Secretary of State.
Lord Canning, the last Governor General under the company, became the first Viceroy under the Crown at the Darbar held in Allahabad on 1st November 1858. He read out the Queen's proclamation in appreciation of the loyalty shown by the Indian prince during the revolt. The proclamation discontinued the doctrine of lapse and promised not to annex any more territories. It also promised non-interference in India's religious and social custom. This meant that the British would no longer take interest in social and religious reforms. They hoped this would win them the loyalty of the orthodox section of society. To win the loyalty of the zamindar, the British recognized the traditional land right and also give them honors and titles. Henceforth, the British pursued the policy of divine and rule to prevent the Indian from uniting. They followed a policy of deliberate discrimination against the Muslim community. To remove all prospectus of revolt, the army was recognized so as to keep it well under British control. The proportion of a European soldier to Indian soldier was increased. Strategic military position and crucial military equipment such as artillery were placed exclusively in the charge of European soldier and officer. The British began to recruit fewer soldiers from Awadh, Bihar, Madras and other areas where there had been revolt in or before 1857. They now recruit more soldiers from among the Sikh, Gurkhas, Pathans, Rajput and Jats who had remained neutral or had helped the British during the revolt. Although the revolt failed, it marked the beginning of a border struggle against the British rule. अब 1858 में है ये जो रिवॉल्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर ख़त्म हो गया और उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर थे उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया और ब्रिटिश पॉलिटिकल अफेयर के लिए सारा चार्ज उन्हें दे दिया और वही लोग पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और जो गवर्नर जनरल थे कंपनी के अंडर उन्हें अब वाइसरॉय बोला जाता था और वाइसरॉय जो है वो लायबल थे क्वीन के लिए। वो सारी के सारी जो डिटेल्स हैं वाइसरॉय क्वीन को देते थे। और ये लॉर्ड जो फर्स्ट वाइसरॉय है वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को ही फर्स्ट वाइसरॉय बनाया गया। और ये कब बनाया गया? 1 नवंबर 1858 में। और इन्होंने क्वीन की प्रोक्लेशन पढ़ी, इसमें सारा कुछ मेंशन था जैसे कि रिवॉल्ट के टाइम पे प्रोक्लेशन हुई जिस कारण रिवॉल्ट हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उसे हटा दिया गया और ये प्रॉमिस किया गया कि वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडियन के रिलीजियस और सोशल मामलों के बीच में और उन्हें कोई इंटरेस्ट ना लें, वो अपना पॉलिसीज़ लगाएं जो कि सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के लिए ज़रूरी हैं, ना कि उनके रिलीजियस चेंजेस के लिए। और उन्होंने सोचा कि इस तरह वो इंडियन सोसाइटी को जोड़कर रखेंगे और उनका भरोसा जीत लेंगे। और उन्होंने जो ज़मींदार थे और जो लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी रिवॉल्ट को बचाने में, उन्हें भी सम्मानित किया। और जो आर्मी थी उन्होंने काफ़ी अच्छे आर्मी के पर्सन रिक्रूट करे, वो वहीं से रिक्रूट करे जैसे कि सिख से, पठान से, राजपूत और जाट को ही मेनली ज़्यादा रिक्रूट किया गया। और उन्होंने डिवाइड और रूल का फंडा अपना लिया कि आपस में इन्हें डिवाइड कर दो और रूल करो। तो उन्होंने मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, तो जो हिंदूस थे वो ब्रिटिश के फेवर में आ गए। तो इस तरह इस रिवॉल्ट का एंड हुआ और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई और रिवॉल्ट चाहे फेल हो गया लेकिन ब्रिटिश के अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई गई ताकि उन्हें भी ये चीज़ याद रहे। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको समझ आया होगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। Thank you so much.